Good evening, students. I welcome you. Last time we have discussed potassium dichromate and explained to you the preparation and properties. And you have seen how important questions were there. And we have another important compound in our course, student, which is very, very important. Very, very important, I am saying. And you know how useful this compound is as an oxidant in the organic chemistry. Also, you are using a lot of potassium permanganate, student. What is potassium permanganate? You already know when I write KMNO4, students. Important thing, as I discussed about these compounds, student, I discussed about potassium dichromate. That was, what is the color of potassium dichromate, students? What was the color of that? What is the color of potassium dichromate? Last time we have discussed that. That was what? Orange. Orange crystals. Very beautiful orange crystals are there. Now this is also highly colored, student. You may have seen solutions of KMNO4 as well as crystals of KMNO4 in your chemistry lab, students. Per the name per student, it is purple, actually purple color. Very beautiful purple color is there. KMNO4 solution. You have seen the bottles, purple color bottles in the chemistry lab, purple color, student. So this is a very important compound, and you will experience that KMNO4 finds great applications. It is used as an oxidizing agent. Also, you will find in the organic chemistry, we are using this. Color is purple and crystalline substance, student. And KMNO4 is a salt of famous acid. What is that acid, student? If I remove this K with HMNO4, what is the name of this, student? Question was asked, what is the acid? Name the acid of the KMNO4. What will be that? This is called permanganic acid. Per name here permanganate, permanganic acid. Everything note down because there will be questions like this in the paper. One word and 1 mark question. Simple. Remove K by H, that becomes the acid. This is a salt of permanganic acid. Permanganic acid, student, important. And when you react this with potassium hydroxide, if it is an acid, it is a base, then you will get salt. That salt is KMNO4. KMNO4. If I react, student, HMNO4 plus KOH, what you will get? KMNO4 plus H2O. ठीक है? Acid, base, salt and water. Got the result? But you don't add direct potassium, then it will start burning. It will start burning, student. Very explosive reaction. See, so potassium permanganate is important, and per means it purple color solution. Colors are important. Again and again, I remind you that in these chapters, colors are important. Why do I say that? Questions are given in paragraph form, students, in which they mention the colors of the solutions. So important point to note is, if I have KMNO4, the ion is MnO4 minus, MnO4 minus manganate ion. What is the oxidation number of manganese here? What is the oxidation number of manganese in these, students? Oxidation number I am saying of manganese. What is the oxidation number of manganese in this manganate ion? This is purple in color. Purple color. How much it will be? +7. Can you see? X minus 8 is equal to -1. X will be +7. Correct? Am I right? Yes. तो देखो कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही हैं आपको. कोई भी ऐसे जो भी बातें होती हैं, हम कहाँ से लाते हैं? क्वेश्चंस जो पिछले साल के होते हैं वहां से लाते हैं. जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम जब पढ़ाते हैं उनको हम लेके उसको डिस्कस कर देते हैं. तो आप क्या करेंगे?
कि कोई भी हम बात बता रहे हैं आपको, कोई वर्ड बता रहे हैं, कोई भी लाइन बता रहे हैं, कोई भी रिएक्शन बता रहे हैं, उसे अपने नोट्स पे ले लीजिए, उसे नोट्स में रख लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में। आपको समझ में आई कि आप जब कोई भी चीज के लेक्चर अटेंड करते हैं तो आपके पास बड़ी भारी इंफॉर्मेशन आती है, उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को अपने नोट्स पे रख लीजिए, वही आंसर आपके पेपर में आ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर। अब आया कि ये केमिकल कंपाउंड है दैट कंबाइंस, ठीक है, इज अ कॉमन केमिकल कंपाउंड दैट कंबाइंस मैंगनीज ऑक्साइड और विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो एक और होती है, ये बनेगा कैसे, बनेगा कैसे, बनेगा कैसे। इट वॉज फर्स्ट डिवेल्प्ड एज डिसइंफेक्टेंट, ये सबसे पहले डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किया गया था, और ये बहुत ज्यादा स्किन डिसीजेस और स्किन और फंगल इन्फेक्शंस के लिए यूज होता है। आपको पता है ये स्किन पे प्रॉब्लम्स आती हैं जब लोगों को, और डिसइंफेक्टेंट की जरूरत पड़ जाती है, डिसइंफेक्टेंट की जरूरत पड़ जाती है, तो इसमें क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को घोल लेते हैं, तो उसके लिए वो यूज कर लेते हैं उसको। कौन सा यूज करते हैं, KMnO4 एज ए डिसइंफेक्टेंट। तो वो बहुत पुराना यूज हुआ है डिसइंफेक्टेंट। अब देखो कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसको बनाओगे कैसे, ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है। जैसे हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाया था, तो इनकी ओर्स होती हैं स्टूडेंट्स, ओर्स होती हैं, तो ओर्स में से ये बनाए जाते हैं, और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, पता है इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। कहाँ यूज होता है पता है, ये KMnO4 स्टील इंडस्ट्री में, जो स्टील बनता है उसमें मैंगनीज की जरूरत पड़ती है, मैंगनीज की जरूरत पड़ती है, तो KMnO4 से मैंगनीज को निकाला जाता है और स्टील की इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसकी बहुत ज्यादा यूज है, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत निकालते हैं, और इंडिया मेरे ख्याल 6th पोजीशन पर है। तो इसकी बहुत डिमांड है इसकी और की। तो बनाओगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, वो रिएक्शन देगा, ये आपको पूछेगा राइट द रिएक्शंस फॉर द प्रेपरेशन ऑफ KMnO4। तो प्रेपरेशन एक इंपॉर्टेंट है, देखो ये दिख रही है, ब्लैक कलर की है और है MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, ब्लैक कलर की। तो ये बनाएंगे कैसे, हाउ टू प्रेपरेशन करनी है, प्रेपरेशन किसकी करनी है, KMnO4 की। तो प्रेपरेशन के लिए क्या करेंगे, वही इसकी जो और है, फ्यूजन ऑफ MnO2, MnO2 इसकी एक और है, उसे बोलते हैं पाइरोलुसाइट। और का क्या नाम है, पाइरोल्यूसाइट स्टूडेंट। तो ये इसकी और है पाइरोलुसाइट, और MnO2 होता है, वो क्या होता है, MnO2 होता है स्टूडेंट, एक ब्लैक सॉलिड रॉक टाइप होता है। क्या होता है, ब्लैक सॉलिड रॉक। आपने देखा मिट्टी भी कई तरह की है, कई अलग अलग जगह जाते हो अलग अलग कलर की मिट्टी मिलती है, तो उनके अंदर जो मिनरल्स होते हैं ना उनके कलर्स होते हैं, आयरन के देखें रेडिश ब्राउन टाइप होते हैं। तो ये MnO2 जो है, ये ब्लैक रेड एक रॉक सी होती है, उसे उसे हम पीस लेंगे, क्रश कर लेंगे, तो MnO2 बन जाएगा। अब MnO2 जो है इससे हमें क्या बनाना है, KMnO4 बनाना है। क्या बनाना है, इसको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट KMnO4 से। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये फ्यूजन की जाती है, देखो बाई फ्यूजन ऑफ MnO2 विद एल्कली, एल्कली के साथ हम, एल्कली और ऑक्सीजन के साथ इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे एल्कली और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। या मतलब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से यूज करते हैं स्टूडेंट, ये KNO3 भी यूज होता है, और KOH भी यूज होता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो विद एन एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, एक एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना है, ये एल्कली है, इसको हीट करेंगे हम एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ। व्हाट इज एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट्स, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और हमें चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए ऑक्सीजन डायरेक्ट भी यूज हो सकती है O2, और KNO3 भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन KNO3। दिस प्रोड्यूसेस डार्क ग्रीन कलर, देखो अब यहाँ पे फिर कलर वाली सिचुएशन है। MnO2 का कलर क्या है, ब्लैक कलर, ये काले रंग का है, मेरे पास ब्लैक है, ये वाला ब्लैक है, ये लो ये ब्लैक है, ब्लैक कलर है। कलर याद रखने जरूरी है क्योंकि किसी भी पैराग्राफ में वो रिएक्शन दे देगा।
और इसको जब हम फ्यूज करते हैं, इसे फ्यूजन कहते हैं, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन के साथ हीट कर देंगे, इसे फ्यूज, इस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। ठीक है। और ये ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। ये +4 में है। ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी स्टूडेंट। तो ये बनाएगा, क्या बनाता है, K2MnO4। K2MnO4 स्टूडेंट, यहाँ पर ये किस कलर का है, ये K2MnO4 बनाएगा, ग्रीन कलर का है ये डार्क ग्रीन कलर है स्टूडेंट, कलर नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बनता है K2MnO4 स्टूडेंट, K2MnO4। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अब चेक करो कितनी आई इसके अंदर। हमारे को, हमने कन्वर्ट MnO2 को फ्यूज कर दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, और ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये +4 से K2MnO4 में मैंगनीज की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, बताओ जल्दी से निकाल के। ये बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, किसका? मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इसमें, K2MnO4। ये MnO4 माइनस पर मैंगनेट है, इसे मैंगनेट आयन कहते हैं, ये पोटेशियम मैंगनेट है। सबसे पहले पोटेशियम मैंगनेट बना है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है मैंगनीज का, ये +4 में था MnO2। और ये और है, पायरोलुसाइट और है, ये वाली +6 आएगा ना ये, तो यहाँ पर +6 में आ गया भाई, +4 से +6 में आ गया, तो ऑक्सीडेशन होगी ना इसकी, किसकी, इसकी MnO2 की। अब आपको मिला है K2MnO4। K2MnO4 का मतलब कौन सा आयन मिला है, MnO4 2 आयन। तो MnO4 2 माइनस का कलर क्या दिखाया मैंने, डार्क ग्रीन, ग्रीन रंग का मिला है। MnO4 2 माइनस है ये, और हमें क्या बनाना है, MnO4 माइनस वाला, एक माइनस वाला बनाना है, तो ये ग्रीन है। अब इसको क्या करते हैं, जब इसको हम एसिडिक मीडियम में डाल देते हैं, ये H+ एसिड में, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, ये डिसोशिएट हो जाता है। तो आपको मिलता है MnO4 जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, MnO4। तो ये MnO4 मिलता है, इसका कलर क्या मैंने बताया, पर्पल कलर, कलर चेंज हो जाएगा स्टूडेंट। तो कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन से, ब्लैक से ग्रीन में गया, और ग्रीन से पर्पल कलर का चले गया, क्या हो गया, पर्पल कलर में आ गया, आ गया पर्पल कलर में। ये पर्पल कलर है, चलो ये वाला ले लो, पर्पल कलर, ये पर्पल कलर का बन गया। तो MnO4 का कलर क्या है, पर्पल। MnO4 2 माइनस का क्या है, ग्रीन, डार्क ग्रीन, दिख रहा है, कलर मैंने चेंज कर दिया, आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जब कलर चेंज होगा तो आपको पता लग गया कि ये KMnO4 जो हम बना रहे हैं स्टूडेंट्स, वो बन गया। तो ऑक्सीडाइज कर दिया हमने किसको, MnO4 को। ऑक्सीडाइज कैसे हुआ, अब बताओ इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है मैंगनीज का, MnO4 माइनस में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ स्टूडेंट जल्दी से, कितना +7। है, +7। +7। तो +6 से +7 में आ गया, ये +6 था ना, ये वाला देख रहे हो +6, ये +6 था, और अब यहाँ पे +7 में आ गया, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। तो एसिड के में, या कि खुद ही वाटर में, ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर MnO2 भी बना है, इसके अंदर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हो +4 है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये क्या हुई है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हुई है। देखो ये जो मैं बार बार लिख रहा हूँ, इतना दिमाग लगा रहा हूँ इसलिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत आता है, पैराग्राफ की फॉर्म में भी आता है, कि जो आपके पास पायरोलुसाइट हो रहा है, वहां पे भी हमने फ्यूजन की थी उसको बनाने के लिए, जब हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाया था, उसके लिए भी हमने फ्यूजन की थी, आपने देखा था। वो क्रोमाइट और से बनाया था हमने, कौन सी और थी, क्रोमाइट और, ये कौन सी है, पायरोलुसाइट और। तो और के नाम भी याद कर लो और नोट कर लो, कलर भी चेक कर लो, कौन कौन से कलर के कौन कौन से कंपाउंड बन रहे हैं। बात समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बता रहे हैं इनको।
तुमने नोट कर लिया तो मैं आगे चलूंगा। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, लो और कलर वापस ब्लू में आ जाता हूँ, क्योंकि कलर बहुत काम के हैं, बहुत अच्छे लगेंगे हमें, कलर बहुत अच्छे हैं। देखो एक और भी प्रोसेस है, जैसे कि ये इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से भी बनाए जाते हैं। जैसे कमर्शियली जो होता है, हम क्या करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव यूज मैंगनीज फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। कमर्शियल मेथड्स होते हैं जो थोड़े चीप होने चाहिए, मतलब उनकी कॉस्ट कम पड़नी चाहिए। तो हमने क्या किया कि MnO2 को फ्यूज कर दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पे, या तो ऑक्सीडाइज करोगे ऑक्सीजन से या पोटेशियम नाइट्रेट से। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने कौन कौन से बताए? आपने कहा सर ऑक्सीजन को यूज कर लो, मैंने कहा कर लो, कोई बात नहीं, चलेगा। फिर मैंने कहा कि आप पोटेशियम नाइट्रेट को भी यूज कर लो, वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कई बार क्लोरीन गैस का भी यूज करते हैं, सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये MnO2 को ये +4 से +6 में ले आते हैं हम सबसे पहले। जब +4 से कोई चीज +6 में गई तो ऑक्सीडेशन होगी, मैंने ऑक्सीडेशन कर दी। अब इसके बाद +6 से +7 में जाना है। भाई आपके पास MnO4 2 माइनस है, और आपको बनाना है MnO4 माइनस। तो यहाँ पे +6 से +7 में जाने के लिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कर देते हैं एल्कलाइन सोल्यूशन में। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन स्टूडेंट्स। और एल्कलाइन मीडियम लिखा हुआ मैंने, मतलब एल्कली डाले जाएंगे। तो एल्कलाइन मीडियम में इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो यहाँ पर K2MnO4 में क्या, MnO4 2 माइनस है, और वाटर के अंदर H+ और OH माइनस होता है। और MnO4 2 माइनस जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देगा, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, एक छोड़ देगा, तो ये आ जाएगा +6 से +7 में। तो ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होती है, एनोड पे, और कैथोड पे रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन में H+ आयन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी कैथोड पे, और ये एनोड पे आएगा MnO4। तो इसको हम ओजोन के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, उससे भी इसकी हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, इससे ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये सारी रिएक्शंस हैं, इनको किसी भी समय क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इन्हें नोट किया जाए। और देखो ये कलर चेंज देखना बहुत जरूरी है। ये ग्रीन कलर का है और ये पर्पल कलर का है, दो कलर बता रहा हूँ बार बार। ये ग्रीन है और ये पर्पल है, मतलब MnO4 2 माइनस का कलर बताओ, ग्रीन। ठीक है, इसको कहते हैं मैंगनेट आयन। ये है मैंगनेट आयन। और MnO4 माइनस का कलर मैंने क्या बताया स्टूडेंट, इसे क्या बोलते हैं, पर मैंगनेट। और पर का मतलब ही मेरे को है कि पर्पल कलर, पर्पल कलर, बैंगनी कलर, पर मैंगनेट आयन। तो ये पर्पल कलर का होता है, बहुत ही शानदार कलर बनते हैं। और लैब में इसको बनाया जा सकता है। मैंगनीज दो टू के जो साल्ट्स होते हैं उन्हें ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है स्टूडेंट, बाई पारोक्सो डाइसल्फेट, पारोक्सो डाइसल्फेट पे। तो ये लैब प्रेपरेशन है इसकी, आपको जिसकी रिएक्शन दिखाई गई है। ये सारी चीजें नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लो, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसकी प्रॉपर्टीज भी पूछी जाएंगी। एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसके ऊपर, अभी से ही बता रहा हूँ तुम्हें, इसलिए दिमाग लगाया जा रहा है, एक क्वेश्चन आने ही आना है। जब आपने नोट कर लिया तो मैं आगे चल सकता हूँ। सर। हाँ नोट कर लो सारे। हो गया सर। हो गया तो फिर आगे चलते हैं। देखो कि इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए। स्ट्रक्चर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट। स्ट्रक्चर दो मैंने बताए हैं। एक तो हमने MnO4 2 माइनस बताया, और ये देख रहे हैं इसका कलर ग्रीन है।
और ये होते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना है, +6। तो इसको कैसे बनाओगे, टेट्राहेड्रल को कैसे बनाते हो, आपको पहले हमने बताए हुए हैं कि जब कभी भी टेट्राहेड्रल हमने बनाए हैं स्टूडेंट, हमने ऐसे 4 वो बनाए हैं। अब इसमें ऑक्सीजन देखो, ये तो 2 ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड वाले, और फिर 2 ऑक्सीजन बचे हैं, उनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये इसमें रेजोनेंस होने वाला है, क्लियर है। ये डबल बॉन्ड ये नहीं है कि यहीं रहेंगे, ये सारे घूमेंगे, तो रेजोनेंस होने वाला है। क्या होने वाला है, रेजोनेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स। रेजोनेंस से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होते रहते हैं। तो इससे हम ऐसे शो करते हैं, जैसे अगर ये टेट्राहेड्रल है, आपके पास 4 ऑक्सीजन है, और ऐसे ऐसे ये डैश लाइन, मतलब ये डबल बॉन्ड चारों तरफ घूमते रहते हैं, सभी बॉन्ड्स पर हैं, सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे, ये हम बताना चाहते हैं। सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे, ये 2- वाला है। तो ये ग्रीन कलर वाला है, इसे क्या बोलते हैं, MnO4 स्टूडेंट, टेट्राहेड्रल है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इनकी नहीं होती स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, इनकी हाइब्रिडाइजेशन है D3s हाइब्रिडाइजेशन। इंटरेस्टिंग है, ये अभी तक हमने देखी नहीं थी, अब बता रहा हूँ तुम्हें कि इसके जो डी ऑर्बिटल होते हैं 3 और एक s ऑर्बिटल यूज होता है, D3s। sp3 तो सुनी थी तुमने, D3s नहीं सुनी थी। अब जो रिसेंट बता रहे हैं, इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे मैंगनीज के, क्योंकि ये जब +6 और +7 में क्या होगा, डी डी ऑर्बिटल कितने हैं, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर आपको पता है 25 होता है स्टूडेंट्स। 25 का मतलब क्या हुआ, 4s2 3d5। और अगर इसमें से +6 हो गया, तो +6 का मतलब सिर्फ डी में एक बचेगा, और +7 का मतलब क्या हुआ, D0 हो गया, 3d0 हो गया। तो इसके डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं जो खाली होते हैं, तो इसमें DXY DXZ और DYZ वाले 3 ऑर्बिटल ये वाले यूज होते हैं, और एक s वाला यूज होता है। तो ये हाइब्रिड बना लेते हैं, हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, तो D3s हाइब्रिडाइजेशन होती है। पहले पुराने टाइम पे sp3 माना गया था, लेकिन अब रिसेंट वर्क ये है। तो D3s हाइब्रिडाइजेशन है, ये आप शेप देख रहे हैं टेट्राहेड्रल, लिखा हुआ है मैंने टेट्राहेड्रल। मैंगनीट आयन लिखा है, ये ग्रीन कलर का है, ये टेट्राहेड्रल है, ये परमैंगनेट आयन है, ये पर्पल कलर का। ये बातें नोट की जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी कुछ लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में, इसको नोट कर लो। ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये बुक में भी नहीं मिलेगी आपको भी। तो इस हो तरह गया। से इनके ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछे जा सकते हैं। और ये अगर MnO4 का मैंने बनाना है स्ट्रक्चर, तो आपको पता है इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7 है। तो फिर आपने कैसे बनाया, ये टेट्राहेड्रल हम कह रहे हैं, 1 2 3 4 इस तरह से। अब इसमें एक ऑक्सीजन के पास माइनस है, और ये 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। अब फिर ये रेजोनेंस हो जाएगा, ये नहीं कि ये 3 डबल बॉन्ड है तो इसके पास नहीं है, ये रोटेट करते रहेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी हमने ऐसे ही दिखाया। ये ऑक्सीजन है 4, ये डबल बॉन्ड सभी पर है, पूरा नहीं है, 1/4 रोटेट कर रहा है स्टूडेंट्स। तो इसको शो करने का तरीका ये होता है, एक नेगेटिव चार्ज है वो चारों ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, रेजोनेंस होती रहेगी। क्या होती रहेगी, रेजोनेंस होती रहेगी। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। हाँ जी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके कलर पे क्वेश्चन आ गया कि ये कलर्ड क्यों होते हैं, इतने इतने शानदार कलर है, ये ग्रीन है, ये पर्पल है, बड़ा शानदार कलर है। लेकिन आप ये कहोगे कि कलर कलर का रीजन क्या है भाई, अगर MnO4 है, तो आपने कहा ये +7 में है, +7 में तो D0 हो गया, बोलो D0 हो गया। तो इसमें डी डी ट्रांजिशन तो हो नहीं रही, क्या हो रही है, जब डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डी डी ट्रांजिशन कैसे होगी। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि ये स्पष्ट बहुत हाईली कलर्ड होते हैं, इनके कलर का रीजन क्या बताया था, जल्दी से बताओ, 1 मिनट का वक्त है। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। उसे क्या बोलते हैं, लिगेंड
मेटल चार्ज ट्रांसफर। ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन जो है, ऑक्सीजन डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज। यही कह रहे थे तुम, यही लिखना था तुमने पेपर में, हाँ जी सर। तो 1 नंबर मिलता। अच्छी बात है, तुम भूले नहीं अभी तक, तुम्हें याद है, इसका मतलब तुम्हारी मेमोरी भी अच्छी है, स्ट्रांग है। जो बताया था लास्ट क्लास में वही इसका आंसर था। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है इसीलिए बताया जा रहा है। फिर आ सकता है स्टूडेंट लिखते थे कि कलर इज ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, क्यों, वो कहते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट है मैग्नीज, तो एक ही चीज मुझे याद है। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया डी डी ट्रांजिशन नहीं होती, ये जो चार्ज ट्रांसफर वाले होते हैं इनके कलर और भी ज्यादा इंटेंस होते हैं, बहुत ही शानदार और इंटेंस कलर मिलते हैं। तो इनकी ब्यूटी ही यही है, केमिस्ट्री लैब की ब्यूटी ही यही है, जो कलर्ड कंपाउंड्स बनते हैं इतने सारे शानदार, जो डिफरेंट कलर आप देखना चाहते हैं वहां देख सकते हैं, जो मैंने नहीं भी देखे डेली लाइफ में वो सब वहां बन जाते हैं, इसीलिए वो बहुत कलरफुल लैब है। ठीक है, तो पूरी होली होली जो है वहां पर दिखाई देती है, होली के रंग जितने अलग अलग दिखते हैं। आगे चल सकता हूँ अगर आपने नोट कर लिया। हाँ जी। अच्छा, देखो कहीं भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। हम जो ये डिफिकल्ट टॉपिक्स थे स्टूडेंट्स के लिए, उसको आसान करने के लिए हमने आपको नोट्स अच्छे तरीके से बनवा रहे हैं कि क्वेश्चन जब आएगा तो आप आसानी से पेपर में कर सकते हो। अब वो पूछेगा एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ हीट ऑन पोटेशियम परमैंगनेट। तो अगर इसको मैं हीट कर दूंगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है जैसे व्हेन हीटेड बताइए क्या होगा, तो ये डिकम्पोज हो जाता, ये टूट गया। देखो यहाँ पे मैंने हीट किया, ये हीट का सिंबल है, तो K2MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम मैंगनेट बना है और मैंगनीज डाइऑक्साइड बनी है। ये +7 में था स्टूडेंट्स, इसकी +6 है, और ये कितना है +4। तो ये टूट गया है देखो, +7 से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया और ऑक्सीजन गैस भी निकली है। कौन सी गैस बनी है, ऑक्सीजन गैस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, जब ये हीट करने पे टूटेगा इसमें ऑक्सीजन गैस निकलेगी तो होगा क्या कि बहुत सारी रिएक्शन में अगर मैंने ऑक्सीजन गैस निकली तो ये फ्लेमेबल हो जाएगा, आग लग सकती है, आग लग सकती है। बात सुनो, ऑक्सीजन गैस जब बहुत ज्यादा निकलती है ना तो वो फ्लेमेबल, इट कैन कैच फायर स्टूडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि ये क्या होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी जब हम डालते हैं ना, तो अगर ऑक्सालिक एसिड सॉलिड लिया उसमें मैंने ये KMnO4 डाल दिया तो फायर लग सकती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी तो बर्न हो जाएगी। अब एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसने पूछा था कि सर बताओ कि ये जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी डिकम्पोज हो जाता है। KMnO4 को कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो Mn2O7 बना, KHSO4 बना और वाटर बना, और ये फिर डिसोशिएट हो गया Mn2O7 MnO2 में और 3O2 में, तो यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड बन गया स्टूडेंट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड लिखा हुआ मैंने, ये भी नोट करो, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड। और हॉट के साथ क्या हुआ स्टूडेंट, हॉट के साथ KMnO4 रिएक्ट कर गया और ये मैंगनीज सल्फेट बन गया और पोटेशियम सल्फेट, और फिर ऑक्सीजन गैस निकली है 5O2 हॉट। देखो हॉट में बहुत ऑक्सीजन गैस निकली है, तो ये रिएक्शन मतलब एक्सप्लोसिव हो सकती हैं, इसलिए कह रहा हूँ। देख रहे हो कि एकदम कितनी वो निकली है इसमें। KMnO4 की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है स्टूडेंट, नोट कर लो, ये सारी रिएक्शन नोट कर लो। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है तो ये बर्न कर सकता है, बर्न कर सकता है स्टूडेंट। क्या होगा, ये बर्न कर सकता है। क्यों बर्न कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस बहुत निकल रही है, देख रहे हैं। तो ये क्या करेगी, अगर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई, हीट प्रोड्यूस होगी तो आग लग जाएगी, आग लग जाएगी स्टूडेंट्स। तो बी केयरफुल, इसको केयरफुली हैंडल करना है। यहाँ तक नोट करा तो मैं आगे चलता हूँ। नहीं सर, हाँ नोट कर लो सारी, ये रिएक्शन आई हुई है, वो पूछेगा कि कौन से प्रोडक्ट बनेंगे अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट किया KMnO4 के साथ और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया।
हो गया। ओके, वेरी गुड, हो गया तो और भी अच्छी बात है। अब देखो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर आ गए जिसके ऊपर 100% क्वेश्चन आता है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, देखो ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज हो रहे हैं और बहुत सारे नॉन मेटल को मेटल्स को ये ऑक्सीडाइज करते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रूप लेते हैं स्टूडेंट। और इसकी प्रॉपर्टी तो प्लैटिनम डाइक्रोमेट से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर न्यूट्रल मीडियम में अलग है और एल्कलाइन मीडियम में अलग है। न्यूट्रल मतलब वाटर है सिर्फ, एल्कलाइन में मतलब एल्कली है, एल्कली जैसे OH माइनस है अगर आपने बेस डाल दिया। और तीसरा ये एसिडिक मीडियम में तो बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एसिडिक मीडियम में मतलब एसिड में हम रिएक्शन करते हैं H+। तो यूजली हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं H2SO4। HCl का यूज नहीं करते क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HCl को क्लोरीन गैस निकाल देगा। तो H2SO4 यूज किया है मैंने, नोट HCl, ये पॉइंट नोट किया जाए। जो मैं बात करता हूँ उसे नोट किया जाए। ये क्वेश्चन आ गया कि HCl को क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करेगा, HCl को Cl- को क्लोरीन गैस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये फिर रिएक्शन खराब हो जाएगी। तो HCl को यूज नहीं करते, एसिडिक मीडियम में H2SO4 यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लेते हैं। अब देखो कि होता क्या है स्टूडेंट्स कि MnO4 न्यूट्रल मीडियम में क्या हुआ है कि MnO4 का क्या बना है, MnO2। मतलब ये कितने में था, +7 में, और ये कितने में चले गया, +4 में। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है। देख रहे हो 3 इलेक्ट्रॉन का दिख रहा है। न्यूट्रल मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन का ये गेन करेगा। न्यूट्रल में कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जल्दी से बताओ। न्यूट्रल मीडियम में 3 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए मैंने यहाँ। क्यों, +7 था ना ये, और ये कितना है, + 4। +7 से +4 में आ गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर गया, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर गया। देखो चार्ज तो बैलेंस होना चाहिए दोनों साइड, 3 में 4 चार्ज है, 4 माइनस चार्ज है। एल्कलाइन मीडियम में क्या कर रहा है ये MnO4 से MnO4 2 माइनस में चले गया। MnO4 में कितना है, +7, और ये कितना है, +6। इंटरेस्टिंग बात है कि एल्कलाइन मीडियम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। क्या हुआ है, MnO4 माइनस से अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो MnO4 2 माइनस में चले जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, कितना, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया, माइल्ड मा- ऑक्सीडाइजिंग अब एजेंट। देखो कि तुम्हें कई बार ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कई बार तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा देता। और कई बार आप कहते हो नहीं नहीं मुझे तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए ताकि रिएक्शन रास्ते में ही एल्डिहाइड बने और स्टॉप हो जाए। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन तो मतलब बहुत ही ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। जितने ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होने वाला है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये गेन करने वाला है, उतना ही स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होगा। बात सही है या गलत है, बताओ। स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या है, क्या बताया मैंने, इसको नोट किया जाए। स्ट्रॉन्गर जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन करेगा, मोर इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा, तो ये ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यस या नहीं, जल्दी बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस होता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है उतना ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो ये तो माइल्ड है। अब एसिड मीडियम में देखते हैं क्या होता है। देखो एसिड मीडियम में ये रिएक्शन मैंने लिखी है, ये +7 से +2 में चले गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन चले हैं यहाँ पर, MnO4 माइनस ये +7 से स्टूडेंट्स 5 इलेक्ट्रॉन का गेन कर गया। कितने कितने इलेक्ट्रॉन ले गया। तो यहां पर सबसे ज्यादा इसकी ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। बोलो जल्दी, समझ में आई बात। तो जित एसिडिक मीडियम में ये सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और न्यूट्रल में नॉर्मल, और एल्कलाइन मीडियम में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। रिएक्शन को बैलेंस करना हमें आता है, हम कैसे करते हैं, दोनों साइड में बैलेंस जब रिएक्शंस को करते हैं स्टूडेंट, तो आपको पता ही है
हमने रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग बताई थी, हाफ रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, मैं यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं करूंगा। ये तीनों पॉइंट आपने नोट किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आगे चलता हूं। तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसको एसिडिक मीडियम में यूज करने से बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। नोट करो, फिर आगे एक दो एग्जांपल दिखाते हैं बैलेंस करके रिएक्शंस की, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आते हैं और आएंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर के भी आते हैं। आगे चलूं? अच्छा, यहां भी नोट हो गया। अब देखो कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसकी ई नॉट की वैल्यू +0.56 वोल्ट है। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो वही शो करते हैं भाई इसकी पावर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बढ़ रही है। और एसिडिक मीडियम में आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। एसिडिक मीडियम में वन एसिडिक मीडियम इतना H+ को ऐड किया तो 1.52 वोल्ट है इसकी। तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्टूडेंट्स। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में कि बहुत बार पूछ लिया उसने, जैसे उसने क्वेश्चन दिया कि गिव द इन एसिड सॉल्यूशन, इन एसिडिक सॉल्यूशन स्टूडेंट potassium iodide will be converted into potassium iodide will be converted into what student? I2। यहाँ पे I- था तो I- से आयोडीन बन जाएगी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। तो ऐसी रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना है पेपर में तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? कैसे बैलेंस करते हैं? बहुत आसान है, हमने आपको बताई कि हमारे पास 2 हाफ रिएक्शंस हैं। MnO4 की तो एसिडिक मीडियम में ये मैंने बताई है तुम्हें, ये वाली। तो ये मेरे को पता है, देखो मैं कैसे लिखता हूँ। MnO4 ये किस में जाता है? एसिडिक मीडियम में H+ में। H+ में ये स्टूडेंट जाता है Mn2+ पे। तो बैलेंस करूंगा इस हाफ रिएक्शन को, तो 4 हैं तो मैंने 4H2O कर दिया। हम हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हैं तो ये फिर 8 हाइड्रोजन मुझे लगानी पड़ेंगी, 8। और अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये यहाँ पे चार्ज 2+ है, यहाँ पर 8+ और -1 7+ रह गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो ये मेरी हाफ रिडक्शन रिएक्शन हो गई। ये क्या रिएक्शन मैंने बनाई है? हाफ रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस में हमने सिखाया था कैसे बैलेंस करते हैं 11th क्लास में स्टूडेंट, हाउ टू बैलेंस द रिएक्शंस। मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, बाकी खुद कर सकते हैं। हाउ टू बैलेंस द ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। अब आयोडीन को लो, आयोडीन किस में कन्वर्ट हुई है? आयोडाइड किस में कन्वर्ट हुआ है? आयोडीन में, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े गए हैं। अब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने का क्या तरीका है स्टूडेंट? क्या करोगे बताओ? कितने कितने से मल्टीप्लाई करूं कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए? देखो मैं बैलेंसिंग सिखा रहा हूं, जो मैंने नहीं सिखानी थी यहाँ सिखा रहा हूँ। कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए? ऊपर वाला 2 से नीचे वाला 5 से। ऊपर वाला 2 से नीचे वाला 5 से। भाई तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए, मेरे से भी जल्दी फास्ट कर लिया। तो 5 और 2 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन आउट हो गए। तो फिर फाइनल इक्वेशन क्या बनी? ये दो दो आ गया है ऊपर, MnO4। और क्या बना? ये 8 से 2 को मल्टीप्लाई किया तुमने कहा 16H+ आ गया। नीचे क्या हुआ? 5 × 10, तो ये 10I- बन गया। और फिर ऊपर इधर राइट साइड पे आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट साइड पे मैंगनीज कितने बने? Mn2+ 2 वाले बने। और फिर ये वाटर 4 × 2 कितना हो गया? 8H2O और 5I2। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। बोलो, लिख सकता हूँ पेपर में अब मैं? हाँ जी। तो ये एक मेथड मैंने बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब होते हैं स्टूडेंट, उनकी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। तो हाफ रिएक्शन एसिडिक मीडियम में मुझे पता है, और जो भी जिसकी मुझे ऑक्सीडेशन करनी है उसको लिखूंगा, दोनों को इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दूंगा, तो बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाएगी। एग्जाम के अंदर 1 नंबर मिल जाएगा तुम्हें। अब 1 नंबर तुमने प्राप्त कर लिया क्योंकि तुमने मुझे सही आंसर बताया।
इसका मतलब तुम लोग कर सकते हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। क्लासेस क्यों ले रहे हैं हम, तुम्हें प्रैक्टिस दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर लो भाई, वहां पे फिर गलती होगी नहीं तो। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, पोटेशियम आयोडाइड इज रिएक्टेड विद पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, राइट द रिएक्शन। तो क्या क्वेश्चन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आने हैं, मैंने कहा इसके ऊपर क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में, एक रिएक्शन आनी है कोई भी। तो उसको लिखने का ये एक आसान तरीका बता रहा हूं, जिसको आप समझ लो, जिसको आप समझ लो। तो क्या क्या, जैसे अगर अगर ये फेरस होगा तो फेरिक में ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखो ये हाफ रिएक्शन है और ये हाफ रिएक्शन है मेरे पास एसिड मीडियम में, तो इन दोनों को मिला लेना। और जो टिन 2+ होता है वो टिन 4+ में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे। H2S जो होता है वो क्या करता है कि सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन निकले। इस तरह से हमें रिएक्शंस का पता होता है। NO2- जो होता है वो NO3- में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे कितना है, 2 2 4, ये +3 है और ये +5 में आ गया। लो 2 इलेक्ट्रॉन चले। आपको समझ आ रही है। ये हाफ रिएक्शंस हैं, इसको इसलिए हाफ रिएक्शन से ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमें जो है बैलेंसिंग रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन मिल जाएंगी। बैलेंस्ड, ये नोट कर लो फिर आगे चलता हूँ। हो गया सर। हो गया, हो गया, वेरी गुड। देखो ये क्वेश्चन आया था, ऑक्सालेट और ऑक्सालिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड एट 330 केल्विन, राइट द इक्वेशन। क्वेश्चन आया था पेपर में। ऑक्सालेट आयन, ऑक्सालेट आयन कौन सा, ऑक्सालिक एसिड है मतलब। तो ऑक्सालिक एसिड की रिएक्शन है स्टूडेंट पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। ये रिएक्शन एग्जाम में पूछी जा चुकी है स्टूडेंट। तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, कैसे बैलेंस करोगे, ऑक्सालेट आयन क्या होता है। तो उसकी हाफ रिएक्शन आप बनाएंगे और इसकी हाफ रिएक्शन बनाएंगे, और उसके बाद फिर आप ऐसी रिएक्शंस को कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इनको नोट कर लो स्टूडेंट, कि रिएक्शंस जो आनी है वो कैसे आनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑक्सालेट होता है ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। और यहाँ पर आपको CO2 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो फिर आपको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मेथड बताया हुआ है कि कैसे इन रिएक्शंस को बैलेंस करना है, और दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है किसी भी तरीके से, ताकि वो कट जाएं, ताकि वो कट जाए। तो ये आपके पास एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है MnO4 वाली, और किसी भी रिएक्शन के साथ आप उनको काट सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। ये वाली है, और उसकी हमारे पास MnO4 की क्या है एसिडिक मीडियम में, क्या बताइए, H+ के क्या बनाएगा 4H2O, और Mn+7 से किस में जाएगा Mn2+ में। तो 8H+ दिखाए थे यहाँ पर, और कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए थे, 5 इलेक्ट्रॉन। ये हाफ रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब इन दोनों को ही रिएक्शन बनानी है, कैसे बनाओगे, इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, बताओ और जल्दी से, ऊपर वाले को। नहीं 10, है 5 से कर। 5 से तो 10 हो गए ना, और इसको 2 हाँ से जी, हाँ जी, कट गई है। हाँ जी। तो फिर फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, बना लो। ये फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, 5CO- ऑक्सालेट आया नहीं, प्लस MnO4 कितना आया फिर 2, ये 2, और ये 8 + 2 कितना हुआ 16H+,
और ये 5 इंटू 2 कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी, 10 CO2। और मैंगनीज कितना बना, 2 से मल्टीप्लाई किया। और वाटर कितना बना है, 2 इंटू 4 कितना होगा, 8H2। तो बैलेंस हो गई, हो गई बैलेंस। बोलो, समझ में आई बैलेंसिंग कैसे करते हैं। अब उसने क्वेश्चन दे दिया सल्फरस एसिड और सल्फाइट। सल्फाइट क्या होता है, SO3 इज ऑक्सीडाइज टू, देखो अब ये तुम्हें 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, इसको बैलेंस करो। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं इसलिए बता रहा हूं। इसको ऑक्सीडाइज करना है सल्फेट में, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, सल्फाइड टू सल्फेट। सल्फाइड टू सल्फेट बन रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये कितना है, 3 दून 6, +4 में है, और ये +6 में आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन चले। तो ये 2 वाले हैं और ये हाफ रिएक्शन है, तो इन दोनों को बैलेंस करना है। कितने कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि इसका आंसर आ जाए। देखो ये सारे ही क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ये हो जाएगी बैलेंस, जितनी भी रिएक्शन बता रहा हूं। हाँ जी। कोई भी आएगी पेपर में, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखी है, नाइट्राइट इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट, सल्फाइट इज ऑक्सीडाइज टू सल्फेट स्टूडेंट। तो ये सब एसिडिक मीडियम में हो रही थी, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट से भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये एक्ट करेगा किसमें, एसिड में भी, न्यूट्रल में भी और एल्कलाइन में भी। अब क्या हुआ, अब ये कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इन न्यूट्रल मीडियम। अब न्यूट्रल मीडियम में ये 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, तो यहां पर क्या हुआ है कि I- जो है I2 में कन्वर्ट नहीं हुआ। देखो I- I2 में कन्वर्ट नहीं हुआ जब मैंने न्यूट्रल मीडियम लिया, देख रहे हो, न्यूट्रल का मतलब वाटर है, एसिड नहीं है। अब यहां पे क्या हुआ है कि I- किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, IO3- में। ये देखो -1 से 0 में गया था, और I- किस में कन्वर्ट हुआ, आयोडाइड आयन में। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडेट आयन भी पूछी जा चुकी है पेपर में। अब ये वाटर है, आयोडाइड है, तो 2MnO2 बन गया, यहाँ पे MnO2 बना है, तो ये +7 से +4 में आ गया, +2 में नहीं आया, +2 में नहीं आया, +4 में आ गया, यहाँ पर देख रहे हो। तो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो थायोसल्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड क्वांटिटेटिवली टू, थायोसल्फेट को ये सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोई भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। और मैंगनीज साल्ट इज ऑक्सीडाइज टू MnO2 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड। ये तीनों रिएक्शन को नोट कर लो, नोट कर लो, कोई भी रिएक्शन एग्जाम में आ सकती है। हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि MnO4, ठीक है, इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टूडेंट। बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री लैब में यूज होता है। और हमने एक नोट नोट करने वाली बात क्या बताई, एसिड मीडियम का बताया मैंने लेकिन कहा HCl, ठीक है, आर नॉट यूज, HCl इज नॉट यूज्ड एज एसिड इन KMnO4। इसका रीजन मैंने क्या बताया तुम्हें, वो Cl गैस रिलीज हो जाती है। क्लोरीन गैस बोलोगी ना, Cl भी क्लोरीन गैस होती है। हाँ सॉरी। HCl में अंदर क्लोराइड आयन है, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन गैस बना देगा, तो वो खराब हो जाएगा सारा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड स्टूडेंट टू क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस बन जाएगी, तो इसलिए इसको हम यूज नहीं कर सकते। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत यूज होता है। अब देखते हैं इसका यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ आ गया, बहुत अच्छा यूज होता है। KMnO4
is widely used in organic chemistry. Student, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत ज्यादा यूज इसका है। तो कहाँ कहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज हो रहे हैं? देखो, ये कौन सा कंपाउंड है जो मैंने लिखा है? ये मिथाइल बेंजीन है। और इसके किसमें ऑक्सीडाइज हो गया? ये कौन सा एसिड बना है? बेंजोइक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? तो इसने साइड चेन को ऑक्सीडाइज कर दिया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात है, कितनी भी लंबी चेन ले लो, देखो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आया हुआ है, CH2 CH2 CH3, इसमें भी आपने KMnO4 डाल दिया, तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल अदा कर रहा है। तो ये क्या बना गया? COH। तो ये इस सब को तोड़ के इसने बेंजोइक एसिड बना दिया। तो यहाँ पे रिएक्शन दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है। और देखो, अगर ऐसी कोई रिंग थी तो उसने उसको भी तोड़ दिया यहाँ से, और ये बन गया है स्टूडेंट, इसे क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे KMnO4H2O किया तो ये क्या बन गया स्टूडेंट? डायोल्स बन गए। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। OH और OH जब साइड पे लगे होते हैं इन्हें ग्लाइकोल्स कहते हैं, ऐसे कंपाउंड बन गए। इस टेस्ट का नाम पता है? ये एक टेस्ट होता है ये, इसको क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? कौन सा टेस्ट है ये ग्लाइकोल्स कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ये कंपाउंड्स का क्या नाम है? ग्लाइकोल्स। दो OH ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये KMnO4 का पर्पल कलर डीकलराइज हो जाता है। ये पर्पल कलर था, ये डी कलराइज हो जाता है स्टूडेंट, कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? कलरलेस स्टूडेंट। इस टेस्ट का नाम पता है? इस टेस्ट को क्या बोलते थे? देखो, यहाँ पे कुछ दिखाया हमने। ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ के इसने डायोल्स बना दिए। एल्कलाइन KMnO4 से ये बन गया फॉर्मेशन ऑफ 1 2 डायोल्स फ्रॉम एल्कीन्स विद कोल्ड KMnO4, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। तो देख रहे हो ये सब क्या बना रहे हैं हम? विस डायोल्स बन रहे हैं स्टूडेंट, विस डायोल्स। तो ये बॉन्ड, डबल बॉन्ड टूट जाता है और ये लग जाते हैं, विस डायोल्स बन जाते हैं। और ये पर्पल कलर इसका डीकलराइज हो जाता है, पर्पल कलर डीकलराइज हो जाता है। ये हरी रिएक्शंस को नोट कर लो स्टूडेंट। इसी को क्या बोलते हैं? बेयर टेस्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। बेयर टेस्ट इज ए लेबोरेटरी टेस्ट टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अगर कोई डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट, तो इसका टेस्ट क्या है? KMnO4 डालेंगे तो कलरलेस हो जाएगा। ये कलरलेस है स्टूडेंट्स, और ये पर्पल कलर का है, देख रहे हैं? तो ये सारे जो टेस्ट हैं इसे बोलते हैं बेयर टेस्ट स्टूडेंट। इसको क्या बोलते हैं? बेयर टेस्ट। इन दिस रिएक्शन KMnO4 इज कंज्यूम्ड, हेंस पर्पल कलर ऑफ KMnO4 डिसअपीयर स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, बेयर टेस्ट। तो सारा नोट कर लो, नोट कर लो सारा। हो गया। हो गया? हाँ जी। Permanganate titration in the presence of hydrochloride is unsatisfactory since hydrochloric acid is oxidized to chlorine। ये क्वेश्चन आया था इसलिए दिया है। और एक क्वेश्चन उसने पूछा इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो इक्विवेलेंट वेट देखो। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है स्टूडेंट? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द एन फैक्टर। एन फैक्टर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिएक्शन में हो रहे हैं। तो एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन चले थे, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 158/5। और बेसिक मीडियम में 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था, तो 158। और न्यूट्रल मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन चले थे? 3। तो इक्विवेलेंट वेट ये हो गया, ये भी नोट कर लो। ये भी नोट कर लो, सारे पॉइंट नोट कर लो। हो गया। हो गया? हाँ जी।
तो यहाँ पर ये KMnO4 के बारे में सारा कुछ आपको मिल गया, खत्म हो गया। सारे क्वेश्चन जो भी आ सकते हैं सारे इसमें आ चुके हैं, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है एग्जाम के अंदर। और फिर आगे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स रह गए हैं, उसका डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में। तो ये सारा नोट हो गया, फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। Okay. ओके।